how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 16, active and the passive voice. Okay, so like start now this chapter, kids. Let's start now. Write A for active or P for passive. Okay, चलिए. She has done the homework. जो सिंपल सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पर डिपेंड है वो होता है एक्टिव. पैसिव होता है जो ऑब्जेक्ट वर्ब बाय और सब्जेक्ट होता है ये होता है पैसिव. ओके, जैसे द डिश आर वॉश्ड बाय जैमिन अर्थात सब्जेक्ट. बाय के बाद सब्जेक्ट ही हो गया हमारा पैसिव. ओके, चल. जॉय ईट्स अ केक. जॉय केक खाती है. बनाएंगे ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट वर्ब और हमारे ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट को यहाँ ले आएंगे. ऑब्जेक्ट इज इटर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म or by joy. Okay, the above two sentences express the same meaning, but in the sentence first the form of the verb show that joy जो हमारा सब्जेक्ट है वो समथिंग उसने कुछ किया. therefore the verb is said to be the active voice. okay, वो जो भी वह कार्य करता है साधारण शब्दों में उसे हम active voice कहते हैं. sentence 2 the form of the verb show that something is done to the cake. Therefore, the verb written is said to be in passive voice. Okay? Active voice है. A sentence is in the active voice when the subject is done of the action. The active voice is so called because the person denoted by the subject X. Number second है passive voice. A sentence is in passive voice when something is done to the person denoted by the subject. The passive voice is so called because the person denoted by the subject is not active but passive. So first or receiver some actions. Examples. Now look at an example of the changing active to the passive voice. Active voice है जो है हो गया और verb होगी eats और object हो गया हमारा आके. passive voice बनाएंगे हम. आके की हो गया हमारा subject. verb की जगह verb आएगा B3. verb की थर्ड फॉर्म इज रिटर्न बाय के साथ ऑब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट. ठीक है, चलिए. सम अदर एग्जांपल ऑफ सेंटेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव एट द पैसिव वॉइस. जैसे द मैन मिल्क्स द काउ. सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है तो ये कैसे बनेगा ऑब्जेक्ट. और यदि एस है तो इसमें एस की जगह लगेगा इज आर एम और वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट. ओके, चलिए बनाते हैं. Cow is milked by the man. When he sings a song is sung by him. The lion killed the sheep. The sheep was killed by the lion. You will do it. It will be done by you. She will wash the dishes. The dishes will be washed by her. Okay, चलिए. Conversation from active voice to passive voice. स्टेप फर्स्ट है इंटरचेंज इन द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का चेंज होना. स्टेप 2 में जो वर्ड बाई लगना है ऑब्जेक्ट से पहले. स्टेप 3 में चेंज किया जाता है वर्ब को थर्ड फॉर्म में. स्टेप 4 में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का एक्टिव वॉइस सेंटेंस इज अ प्रोनाउन. जैसे ही हमारा एक्टिव वॉइस प्रोनाउन में होता है तो जब हम उसे पैसिव बनाएंगे तो उसका ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा. ओके, चलिए. ही चेंज टू हिम एंड हिम चेंज टू ही. She changed her or her changed to she. I changed to me and me changes to I. We changes us and us changes to we. They changes them and them changes to they. You remains unchanged. It remains unchanged. Okay? चलिए एग्जाम्पल्स है कि please ring for the baby. ये हो गया एक्टिव. जैसे ही हो गया सब्जेक्ट, हिम हो गया ऑब्जेक्ट, bravery हो गया ऑब्जेक्ट टू. He was praised for bravery by him. In this example, you see that when there are the two objects, only one object is interchanged. The second object remains unchanged. We need the our floor, ये हो गया active. Dung is made from flour, ये हो गया हमारा passive. In this example, is observed that is the subject in active voice. Sentences is non unimportant or obvious by plus object is omitted. Okay, चलिए. There are the different rules for different tense.
while changing the voice, understand the rules given the following case. प्रेजेंट इंडेफिनिट का इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, जैसे आई ईट सैलड। प्रेजेंट और उसका पैसे बनेगा सैलड इज इटन बाय मी। फिर है प्रेजेंट पार्टिसिपल्स की बात करें तो इज एम आर आता है, बीइंग आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कैसे इज इट ड्राइवर ने कार, ये हो गया हमारा एक्टिव। कैसे बनाएंगे, इज अ कार बीइंग ड्राइवन बाय है। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, रूल से पैसिव वॉइस का हैज अ प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस, है ना। तो लिखेंगे आई हैव नॉट डन द होमवर्क, पैसिव बनाएंगे द होमवर्क हैज नॉट बीन डन बाय मी। पास्ट इंडेफिनिट में आता है वाज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर आता है शी ब्रोक द विंडो, पैसिव बनाइए द विंडो वाज ब्रोकन बाय हर। पोस्ट कंटिन्यूअस में आता है वाज वर्ब प्लस बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। व्हाट वाज शी थिंकिंग और व्हाट वाज बीइंग थॉट बाय हर। पास्ट परफेक्ट की बात करें, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और एक्टिव में आता है शी हैड वाटर्ड द प्लांट, पैसिव आता है द प्लांट्स हैड बीन वाटर्ड बाय हर। फ्यूचर इंडेफिनिट है विल शैल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। बनाएंगे ही विल ईट द लंच, पैसिव बनाएंगे द लंच विल बी ईटन बाय है। फ्यूचर परफेक्ट है विल शैल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं आई शैल हैव टाइम बाय देन, और पैसिव बनाइए इनफ टाइम विल हैव बीन देयर विद। इंपॉर्टेंट नोट्स है अबाउट पैसिव वॉइस था। पैसिव वॉइस है इज यूज्ड टू ले मोर एम्फोसिस ऑन द ऑब्जेक्ट rather than on the subject. Example is shopping in the window shopping are very common though. Computers have become a necessity of life. Number 2 है words such as a somebody, nobody, someone, somebody, where people are not mentioned in the passive voice. Example we give food in the food camp, ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाएंगे food was given in the food camp, ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। ओके, चलिए आगे है नंबर थर्ड, द इंस्ट्रक्शंस मीन gender group are usually sent in passive. We do not mention by who. Example like dustbin is not allowed, smoking is injurious to her. Okay, चलिए if the verb in active voice, टू ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूजुअली एक्ट एज द सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। सेंटेंस है हमारे पास मैरी गेव मी, ये हो गया पहला ऑब्जेक्ट। 10 पेंसिल हो गया दूसरा ऑब्जेक्ट। तो कैसे बनाएंगे, किसी से बना सकते हैं, मी से बनाएंगे तो आई वॉज गिवन 10 पेंसिल बाय मैरी। यदि 10 पेंसिल से बनाएंगे लिखेंगे 10 पेंसिल गिवन was given by Mary, या given me by Mary. Okay, चलिए रिमेंबर है पैसिव सेंटेंस आर नॉट यूज इन आवर डे टू डे combination. We use passive voice in following situation. Number first, when the action completed is more important than the person who caused it. Example, Mr. Modi was elected as a prime minister. Except when we don't know who is door, जो नहीं जानता डॉर्स को, जैसे एग्जांपल है द प्लेन वॉज हाईजैकर्ड। When a process is prescribed, एग्जांपल है द सर्जरी वाज हेल्ड इन द फोर्टिस। चेंजेस वाले चेंजिंग एक्टिव वॉइस टू द पैसिव वॉइस। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, read the changes in the interrogative sentences while changing from the active to the passive voice. The beneficence begins with a helping verb है do, does, did और is, am, are, was, were, is, were प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे एक्टिव वर्ब डिड शी अटेंड द सेमिनार, तो क्या बनेगा, डिड से क्या बनेगा पैसिव वॉइस में was द सेमिनार अटेंड बाय हर। डू है हमारा प्रेजेंट का, तो प्रेजेंट में क्या लगेगा इज, आर और जितने हैज है वो हैड का यूज है, उसमें लगेगा सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे हैव यू कंप्लीटेड द हॉलीडेज होमवर्क, ऐसे वॉइस है फिर द हॉलीडेज होमवर्क बीइंग कंप्लीटेड बाय यू। नेक्स्ट है मॉडल ऑक्सिलरी मॉडल, ऑक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल है विल ही accompany you us to carnival। एग्जाम्पल है वैसिका विल बी द accompanied to the carnival by है। चलिए डब्ल्यूएच वर्ड्स हैं
डिविलियर्स वर्ड्स के साथ सब्जेक्ट और प्लस वर्ब की तर्कों का यूज होता है। एग्जाम्पल है एक्टिव में व्हाट आर यू रीडिंग, पैसिव व्हाट इज बीइंग read बाय यू। कुकर यूज होता है बाई होम के द्वारा, बाई होम प्लस आर प्लस सब्जेक्ट प्लस सब की थर्ड फॉर्म। यदि हमारा कोई सेंटेंस हु से शुरू हो रहा है तो वो बाई होम के द्वारा बनेगा। क्वेश्चन है हु लिंक्ड द आइसक्रीम, बनेंगे बाई हुम वाज द आइसक्रीम लिंक्ड। whom did they taught laugh at, तो who was laughed at by there। चलिए ओके। imperative sentence है there are the two rules to change the verb in the imperative mode for active to the passive voice। we use you are requested। imperative sentence हमेशा या तो रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर करते हैं, सजेस्ट करते हैं और उसके साथ में इन्फिनेटिव लगा के टू लगा करके सेंटेंस जोड़ देते हैं। ओके जैसे प्लीज डोंट स्मोक, कितना स्मोक मत करो, तो ये हो गया रिक्वेस्ट, यू आर रिक्वेस्टेड टू नॉट टू स्मोक। उसी तरह लीव द परमिशन इमिडिएटली, क्या दिया ऑर्डर दिया, तो यू आर ऑर्डर टू ये लगाएंगे और लीव द परमिशन इमीडिएटली एसएम ऐसे इतार देंगे। ओके चलिए नेक्स्ट है वर्ड्स let और the should are used in the sentence with other and advices। एग्जाम्पल है shut the window, let the window be shut, ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे बना सकते हैं the window should be shut। चलिए नेक्स्ट है converting passive voice to active voice। the change to subject and object, use the word right before object, the verb is changed into the third form and if the subject or the verb in the active voice sentence is pronounced a gender। okay चलिए जैसे he का him, she का her, we का us, I का me, they का that। एग्जाम्पल्स हैं पैसिव वॉइस का a baby is feed by है, तो him का क्या बनेगा he feeds a baby। उसी तरह दिस प्रोजेक्ट शुड बी कंप्लीट बाय देम, तो दे शुड कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। ओके नेक्स्ट है विल माय पेंटिंग बी एक्सेप्टेड बाय यू, तो विल का विल रहेगा, यू आ जाएगा विल यू एक्सेप्ट माय पेंटिंग्स। ओके नाउ किड्स दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। आई होप दैट यू अंडरस्टूड दैट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।